Here's a problem. Okay, they have said we have a projectile which is fired at 50 meters per second at an angle, let's say 37 degrees, or let's say 53 degrees. Okay, assume g का value as 10 meter per second square. This is u का value. I hope you understand. तो u तुमको दिया है 50 meter per second. I'll be asking couple of questions to you. एक एक question solve करेंगे. I'll pause the video and then you attempt it. Okay. So u is given to you. Angle of projection is given to you. G is 10 meter per second square. Question number 1 is find the range of projectile. Okay. So question number 2, find h max. Okay. Question number 3 is find time of flight. Question number 4 is find time of ascent and time of descent. Okay. And question number 5 is ki write y as a function of x. मतलब basically give me equation of trajectory. These are all standard formula. फटाफट सॉल्व कर दो. ये सब फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था. सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके तुमको आंसर निकालना है, बस करो. Look at this. So the first step should be to get ux and ui का वैल्यू. तो ux का वैल्यू कितना आएगा? 50 cos 53. Cos 53 how much? Cos 53 3/5 है ना, करेक्ट? अरे आता नहीं, ठीक है. तो कितना आएगा? ux कितना मिलेगा अपने को? 30. और ui कितना मिलेगा? 40 ना. It will be ui will be equal to 50 sin 53 ना. sin 53 is 4/5, करेक्ट? ठीक है. ux ui मिल गया एक बार, तो what can we do? You can get all the answers. Okay. For example, range चाहिए अगर. What is range का formula? 2ux ui upon g. That will be 2 into 30 into 40 upon 10. Cancel this out. How much you will get? 240 ना, बराबर ना. 12 240 meters हो गया. Next, h max. What is h max का formula? It was u square ui square upon 2g. So it will be 40 into 40 upon 2 into 10 है ना. कितना मिलेगा? 80, करेक्ट. एंड देन टाइम ऑफ फ्लाइट 2 ui upon g, करेक्ट. It will be 2 into 40 upon 10, 8 मिलेगा ना, ठीक है. ओके. एंड देन you know time of ascent and time of descent both are equal, and that will be half of time of flight, and that will be 4 seconds. Is making sense? समझ में आ गया? Easy था ये. Okay. And then how about equation of trajectory? What is equation of trajectory? Y is equal to tan theta x tan theta है ना, x tan theta into 1 minus x by r. So you can have x tan theta. Tan 53 is how much? It will be 4/5. So you have 4 by 3x, okay, into 1 minus x upon 240. That's the equation. हो गया भाई, हो गया. समझ आया कैसे किया हमने? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाया, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. डायरेक्ट फॉर्मूला. ओके. थोड़ा बेटर क्वेश्चन देखो, ठीक है. यू कैन कॉपी दिस एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन व्हाइल यू कॉपी. क्वेश्चन सेम, ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इज सेम टू यू. जो वही इन्फॉर्मेशन है. पार्ट 2 क्वेश्चन का ले लो. पार्ट 2 ये है कि फाइंड, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. Find velocity of the particle when the velocity vector makes an angle of 37. Because शुरू किया था 53 पे, तो धीरे धीरे angle will reduce, isn't it? They want 37 जब angle होगा तो तब angle velocity. Find velocity when angle with respect to x axis is 37. Think about this problem and try to get the answer. See. So we can use the logic that x component will be same, right? So what is the x component here? पीछे देखो क्या मिला अपने को. ये कितना है? 30 और ये 40, right? ये वाला 30 है और ये वाला 40 है. तो जो भी v का वैल्यू होगा, that उसका x component जो होगा, what is the x component of v? It will be v cos 37, right? Isn't it? That value has to be same as 30 only. So we can say v cos 37 should be same as 30, correct?
सही लिखा ना, मतलब x कॉम्पोनेंट तो सेम होना चाहिए, तो 30, व्हाट इज cos 37, क्या आएगा यहाँ पे, है ना, 150/4 कितना आएगा भाई, है ना, या इसको ऐसे रख दो, रेशियो में रख दो, क्या ही फर्क पड़ रहा, ठीक है, रेशियो में रहने दो, so we'll get almost 75/2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, isn't it? This is the net velocity. If you want in terms of I cap J cap वो भी निकाल सकते हो. If I ask you what is Vx का value and what is Vy का value, can you get it? What is Vx का value? It is V, which is 75/2 and cos 37. Cos 37 is 4/5, है ना, कितना मिलेगा, सेम मिलना चाहिए जो पहले आ रहा था, यही आएगा, देखो 30 आएगा, बरोबर, ठीक है, एंड Vy V sin 37, right, because this will be V sin 37, correct, ये Vy हो जाएगा, V का वैल्यू आपको पता है 75/2, तो दिस विल बी हाउ मच, 25, तो 75/, वन सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, 15 आएगा ना, 15 राइट, तो 45/2, सही है, सही है ना, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, V विल बी 30 I कैप प्लस 45/2 J कैप, ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर, समझ आया, यस, how can we new sum? So if we automatically come to 37 or what? Question was velocity when the angle with x is 37. How can it be new sum? क्वेश्चन वही तो बोला, कंटिन्यूएशन है, क्या दिमाग लगा रहे हो तुम, क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि अभी 53 है, राइट, एज यू गो आगे इट विल बिकम 37, तो व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द एंगल बिकम्स 37, दैट वाज द क्वेश्चन, राइट, हाउ इज दिस कंफ्यूजन, क्या मतलब इसमें तुमने अपना एक बना दिया, हाँ ये समझ में आया क्या, ठीक है, अच्छा अभी सुनो, क्वेश्चन क्लियर है ना सबको कि भाई 53 से 37, मुझे मेरा क्वेश्चन अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है कि यू हैव टू टेल मी कि हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर दिस टू हैपन, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आने का टाइम क्या है, समझा क्वेश्चन नंबर 2, तो फॉर इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कि फाइंड टाइम फॉर रीचिंग एट पोजीशन 2, समझ में आया क्वेश्चन क्या है कि हमने प्रोजेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, इसको इधर पहुंचा तो एंगल 37 हो गया, ठीक है, तो ये यहां से यहां पे जाने का टाइम बताओ, करो, सी क्वेश्चन क्या पूछा इसने कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट हियर टू दिस पॉइंट हियर, ओके, एंड you can say this is point A, this is point B for example, and you know that यहाँ पे वेलोसिटी कितना था 30, तो ये 40 था, राइट, यहाँ पे हमको ये 30, ये मिला हमको 45/2, बराबर है ना, बिकॉज दिस एंगल वॉज 53, दिस इज 37, सही है ना, ये करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू एनालाइज बोथ द मोशन सेपरेटली, तुम ऐसा समझो कि मैंने तुमको बताया था कि दिस मोशन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इजंट इट, बरोबर ना, ठीक है, ओके, तो लुक एट द वाई मोशन, सिर्फ और सिर्फ वाई को देखो तुम, ओके, योर फोकस शुड बी ऑन द वाई एक्सिस, बिकॉज एक्स एक्सिस में तो स्पीड सेम ही है, ठीक है, तो वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना डिफिकल्ट है, ओके, लुक एट द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, व्हाट कैन आई से अबाउट वाई एक्सिस, आई कैन से दैट कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है 40, है ना, वाई की बात करो, सिर्फ और सिर्फ वाई को देखो, ठीक है, ओके, और फाइनल वेलोसिटी कितना है वाई पे 45/2, दिस इज u एट y
एंड दिस इज v एट y, ui vy बोल सकते हो, बोलना है तो, है ना, करेक्ट. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन y एक्सिस? माइनस g. ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इट इज -10 डाउनवर्ड्स. ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में है. तुमको क्या पूछा उसने? अब बताओ, टाइम निकाल सकते हो यहां से जाने का? निकाल. v है, u है, a है. कैन यू फाइंड t? व्हाट इज द फॉर्मूला? v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना. तो you'll get 45/2 is equal to 40 minus 10t. What do you get इससे? क्या है ऐसे? कितना है आंसर लास्ट में? 7/4. In fact, if they ask me what is this height, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए निकालने के लिए. If I ask you what is this height y, निकाल सकते हो क्या? हाँ, again is just s is equal to ut plus half at square. आ जाएगा ना, जिसका वैल्यू हमारे पास है ही है. और यू कैन यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है कि नहीं? समझ में? हाइट निकालना भी बड़ी बात है तुम्हारे लिए. अच्छा, मैं तो ये पूछ लूं अगर कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस कितना है? x. ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना चला हो तो मैं निकाल लिया. If I ask you what is the horizontal distance traveled, can you find it? Can you give me what is the horizontal distance traveled? ये मैंने सिखाया तुमको हाउ टू गेट y का वैल्यू, राइट? If they ask you y का वैल्यू, you can get it, है ना. अगर तुमसे पूछा कितना x चला तो निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो. x एक्सिस का मोशन देख लो, x पे वेलोसिटी कितना है? हमेशा 30 रहने वाला है. ठीक है, तुमको टाइम पता है क्या वहां से वहां जाने का? 7/4. टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस मिल जाए. डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. 30 इनटू व्हाट? 7/4. हो गया, इतना डिस्टेंस चलेगा. तो कितना डिस्टेंस चला, कितना ऊपर गया, क्या उसका वेलोसिटी है, कितना टाइम लग रहा है, वो सब निकाल सकते हो. एंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मतलब द ओनली लॉजिक दैट यू हैव टू यूज इज यू हैव टू सेपरेट द मोशन. एक्स को एक्स के तरीके से, वाई से वैसे कर लो, आराम से आ जाएगा. सर समझ में आया क्वेश्चन? सबको समझ में आया क्या कैसे किया हमने? पक्का? एनी क्वेश्चन एनीवन? श्योर? ठीक है, इफ यू गॉट दिस, ट्राई दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में वही चल रहा है, डेटा वही है. ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ बस. ये थर्ड क्वेश्चन हो गया. एक और देखो, फोर्थ वन. इफ आई आस्क यू, कैन यू गिव मी व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन कंप्लीट जर्नी? आई होप यू अंडरस्टैंड इज कंप्लीट जर्नी, शुरुआत से लेके अंत तक. मतलब ये शुरू हुआ और वापस ग्राउंड पे, ग्राउंड से ग्राउंड पे. आई वांट एवरेज वेलोसिटी इन द कंप्लीट जर्नी. दैट इज योर क्वेश्चन. ओके, अटेम्प्ट करो. So if you want average velocity, the method one could be जो सबने किया अभी. Okay, they can say कि we know that v average is total distance traveled. In this total distance traveled कितना है भाई, है ना? So that is range upon total time taken, which is time of flight. ठीक है, रेंज का वैल्यू कितना मिला था हम लोग अभी? 240 अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 8. ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसे? दिस कुड बी वन मेथड. ओके, ये तो मतलब तुमको समझ में आ ही गया होगा, बट I'll give you one more formula. Okay, this is the formula. You should know that if acceleration is constant, this is, you can note it actually. If a is constant, then you can use v average के लिए u plus v/2. ये वैल्यू ये भी यूज कर सकते हो. ओके, और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर, तो थोड़ा समझना पड़ेगा क्या हो रहा है. देखो कि दिस वैल्यू वाज 30, राइट, एंड दिस वाज 40. तो when the net velocity was like this, ऐसा नेट वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे था, इनिशियल वेलोसिटी वाज लाइक दिस. जब वापस गिरेगा वो, ठीक है, यहाँ पर, तो वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, एंड एक्स वेलोसिटी उतना ही रहने वाला है 30. एंड आई टोल्ड यू कि वाई वेलोसिटी भी सेम ही होगा 40. करेक्ट है ना? समझ में आ रहेगा क्या चल रहा है? ओके,
तो इफ आई ऐड, देखो तो यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को आई कैन राइट लाइक दिस, दिस इज रीजन आई एम गिविंग दिस मेथड। आगे जाके तुम इसको यूज कर सकते हो, अभी नेक्स्ट जो कराऊंगा वो। यू इनिशियल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं क्या। और जो वी थोड़ा वी है जो, या यू, इसको यू ही लिखते हैं, यू इनिशियल नहीं लिखते, यू कर देते हैं यू, और वी लिखना है अगर तो कैसे लिखेंगे, 30 आई कैप ओनली, बट वाई एक्सिस इज गोइंग डाउन राइट, माइनस 40 जे कैप, ठीक है। और u प्लस वी करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, अपॉन 2 गया तो यू गेट योर वी एवरेज। वी एवरेज सिंपली विल बी 60 आई कैप, है ना, ऐड करेंगे ना उसको, तो 60 आई कैप अपॉन 2 30 आई कैप, वही आंसर। दिस इज अ वेक्टर मेथड। चमका, माय क्वेश्चन टू यू इज, कैन यू सॉल्व नाउ, गिव मी द आंसर for average velocity till you reach maximum height, यहां से यहां पहुंचेंगे तो find v average, ठीक है, from point of projection या from A to the highest point B। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, अभी v average निकालना सिखाया तुमको राइट, ओके, तुम वही फॉर्मूला यूज करो या जो भी यूज करना यूज करो, मुझे बताओ कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट, ट्राई। So if they ask me, I know that यहाँ पे velocity कितना है 30, यहाँ पे 40, at highest point you only have x velocity right, there is no y velocity, highest point पे क्या होता है v by 0 हो जाता है, isn't it? So I know that my initial velocity is 30 I cap plus 40 j cap, isn't it? And my final velocity is 30 I cap only, so which means my average velocity, I am just using the formula that we used last time, so it will be 60 I cap प्लस 40 जे कैप डिवाइड बाई 2, यू प्लस वी बाई 2 कर रहे हैं तो यहाँ 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप, या इसका वैल्यू पूछा आपने को तो वी कैन ऑलवेज गेट द वैल्यू एज रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इजंट इट, विच विल बी 10 9 प्लस 1 11, है ना, नहीं 13 सॉरी, करेक्ट, सही है ना, ओके। आई कैन मेक दिस क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो, जैसे वो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया हमने कि ये पॉइंट ए था और पॉइंट बी, पॉइंट ए पे एंगल वाज 53 व्हेन आई प्रोजेक्टेड इट एंड व्हेन इट रीच 37 ना, ये वाला क्वेश्चन भी किया ना, 37 पे पहुंच रहा है, ऑल दोस थिंग्स। ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से पॉइंट बी इज दिस पॉइंट, कि इनिशियल पॉइंट इज योर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड फाइनल पॉइंट इज योर पॉइंट एट विच द एंगल बिकम्स 37 एंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं। एवरेज के लिए वी कैन यूज ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, समझ में आया क्या, ट्रायंगुलर ब्रैकेट दिया मतलब एवरेज, ठीक है। तो वी ए भी पूछ सकते हैं ऐसे भी, तुमको पता है अभी हमने सॉल्व किया था कि यू क्या था, सेम 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, एंड यहाँ पे व्हाट वाज द वी, इफ यू रिमेंबर इट वाज 30 आई कैप प्लस 45 बाई 2 जे कैप, इजंट इट, यू ऐड डिवाइड बाई 2 यू गेट द आंसर, समझा क्या। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता है तो एवरेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हमेशा निकाल सकते हो, ओके। तो इन दिस केस इट विल बी व्हाट, वी एवरेज वुड बी अगेन 30 आई कैप प्लस क्या है यहाँ पे 180 प्लस 125 बाई 4 जे कैप, ओके। आई एम जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला दैट आई हैव, तो मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालने आता है, और वो दो चीज़ पता है मुझे, तो आई एम एबल टू गेट माई एवरेज वेलोसिटी, ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, बट वेक्टर फॉर्म में किया है, उस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को, समझ में आएगा। आई एम नॉट यूजिंग द मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। एनी क्वेश्चंस एनीवन, इट इज वेक्टर फॉर्म, ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है। यू प्लस वी में मैंने वेक्टर फॉर्म लिया हुआ है, समझ में आया क्या, अच्छा ये समझ में आ गया है। तो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, यू कैन कॉपी दिस, हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे, कि योर वेलोसिटी वेक्टर इज इनिशियली लाइक दिस and it will keep on changing direction, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, राइट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि ये तेरा इनिशियल वेलोसिटी है, एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि लुक एट दिस वेलोसिटी, ये वाले को देखो, ये v को देखो, तो ऐसा हो सकता है कि ये u और ये v परपेंडिकुलर हो जाए, समझा क्या, वेलोसिटी का वेक्टर जो है वो डायरेक्शन ऐसे चेंज कर रहा है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि एक टाइम के बाद अपने इनिशियल डायरेक्शन को परपेंडिकुलर हो जाए, समझा।
तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर बोलो या ऑर्थोगोनल बोलो, ऐसा तो कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो तुम, ऑर्थोगोनल टू इनिशियल वेलोसिटी। समझा? अगर इनिशियल वेलोसिटी इज लाइक दिस, इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है, तो कौन से टाइम पे, कितने टाइम के बाद ये वेलोसिटी जो है वो अपने इनिशियल डायरेक्शन को परपेंडिकुलर हो जाएगा। so find time after which velocity vector becomes perpendicular to its initial direction। समझा? ठीक है, ट्राई करो। See, so you know the initial velocity vector as 30 i cap plus 40 j cap, ये तो पता है हमको, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v will be vx which is 30 i cap only, right, plus vy, can we write vy in terms of time, it is u plus at, हमने लिखा था ना vy का फॉर्मूला, vy is equal to ui है ना प्लस ui माइनस gt, ऐसे लिखा होगा तुमने इक्वेशन में, है ना, u sin थीटा माइनस gt, वही किया है। मतलब देखो इनिशियल वेलोसिटी 30 और 40 है x और y का, बट फाइनली क्या होगा, x वेलोसिटी वही रहने वाली है, ठीक है, y वेलोसिटी विल चेंज, इजंट इट, और y वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम लोग, u प्लस at, u प्लस at, a लेकिन नेगेटिव है इसलिए माइनस लिखा है यहाँ पे, समझ में आया क्या, ठीक है। vy का फॉर्मूला वी नो इन टर्म्स ऑफ टाइम आल्सो, वी नो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आल्सो, इफ यू रिमेंबर, ये यूज कर रहा है कि ये यूज कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि टाइम पूछे कि डिस्टेंस पूछे, समझ में आया क्या, मुझे टाइम पूछ रहे हैं इसलिए आई एम यूजिंग दिस वाला, इज मेकिंग सेंस, समझ में आया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0, समझा क्या, और डॉट 0 मतलब क्या है कि a1 a2 which is 30 into 30 plus b1 b2 which is 40 into 40 minus 10t is equal to 0, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 होता है। डॉट का ऐसे निकालते हैं ना हम लोग फॉर्मूला, डॉट कैसे निकालते हैं कि जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो व्हाट डू यू गेट हियर, यू गेट 900 करेक्ट, प्लस यू गेट यहाँ पे 1600 माइनस 400 t इज इक्वल टू 0, तो विल गेट t का वैल्यू है 9 प्लस 16 कितना मिलेगा, 25 अपॉन 4, isn't it, and this value is less than time of flight, 8 seconds है ना टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को, 8 से कम है राइट, तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल, दिस इज द आंसर। देखना पड़ता है कि ऐसा सच में होगा भी कि नहीं, कि वो ऐसा हो सकता है इफ दिस टाइम इज लेट्स से मोर देन 8 सेकंड्स, 10 सेकंड्स आ गया तो भाई मोशन खत्म हो गया, उसके बाद परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल, इन द ट्रैजेक्टरी इज नॉट पॉसिबल, टू चेक कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट से कम आ रहा है कि नहीं वैल्यू, समझ में आया कैसे किया, तो दिस इज हाउ यू यूज वेक्टर्स इन योर प्रोजेक्टाइल। तुमको वेलोसिटी निकालना मालूम था कैसे निकालते, राइट, ये तो हमने सीखा है, ठीक है, उसको यूज कैसे कर रहे हो देखो, ध्यान दो, तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर बोला है तो यू शुड नो दैट डॉट विल बी 0 एंड दैट प्रॉपर्टी यू हैव टू यूज, समझे। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये कॉपी कर लो एंड वन मोर क्वेश्चन यू ट्राई, फाइंड एंगल बिटवीन acceleration and velocity, I want to use one more property dot, at y is equal to h by 2, h max by 2, क्वेश्चन ये पूछा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बीच का एंगल बताओ जब तुम्हारी हाइट हो जो है h max का हाफ होगा तब, ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन a and v when the vertical displacement is half, so to understand यहाँ पे कि we are going to use the same vector property only, okay, first of all h by 2 मतलब यहाँ पे कहीं की इधर की बात चल रही है, राइट, where height is some h by 2, we can calculate that value, है ना, h max by 2, h max तो निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, उसका हाफ ये भी निकाल सकते हैं, वो निकाल लिया अगर तो you can get velocity at this point, isn't it, because this will be how much, this will be 30 only, और ये वाला वैल्यू कैसे निकालोगे,
चलो एच मैक्स का वैल्यू निकाला था हमने, बताओ कितना था? और एच मैक्स का वैल्यू 80, तो एच मैक्स बाई 2, तो y का वैल्यू एच मैक्स बाई 2 बोल रहे हैं हमको, दैट इज 40, isn't it? And what is vy at this height? It is u square, v square is equal to u square is how much? 40 square, correct है ना, minus 2 g y is 40, so that will be how much? 1600 minus कितना है भाई ये 800, कितना मिलेगा 800, ठीक है। तो वी वाई की वैल्यू कितनी मिली? इट विल बी 10 20√2, सही है क्या? चमका की बाउंसर, इतना समझ में है? श्योर? क्या किया मैंने? कुछ नहीं, मैंने मुझे y का वैल्यू दिया है उसने, उससे मैंने vy निकाल लिया है ना। vy कैसे निकाला? वही अपना नॉर्मल v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस वी नो, दिस वाज 30, दिस वाज 40, राइट? तो ये वाला वेलोसिटी यूज करके ये वाला वेलोसिटी निकाल लिया हमने, क्योंकि y तो पता था हमको, है ना। u पता है, s पता है, a पता है, तो ये v मिल जाएगा, समझा? यू गॉट दिस पार्ट? अच्छा, तो क्या मिला मुझे? ये 20√2। तो कैन वी से दैट, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है v, ये जो वेलोसिटी v वेक्टर है, इसको लिखेंगे 30 i कैप प्लस 20√2 j कैप, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, है ना। एंड हाउ अबाउट द a वेक्टर? a वेक्टर नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन g है नीचे की तरफ, तो उसको लिख सकते हैं -10 j कैप। a का वैल्यू -g है ना, और डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो आई हैव एक वेक्टर v और दूसरा वेक्टर a, इन दोनों के बीच का एंगल मांगा है उसने। तो इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर इज गिवन टू यू, एंड इफ दे आस्क मी व्हाट इज थीटा बिटवीन दिस टू वेक्टर, हाउ डू यू सॉल्व इट? यू शुड यूज डॉट का अनदर प्रॉपर्टी, रिमेंबर, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन ab। चमका क्या? चमका कैसे करेंगे? तो तेरे पास ये वेक्टर भी है, तो मुझे मिल जाएगा एंगल क्या होगा? सिंपली इट विल बी v डॉट a अपॉन वी ए। इनका वैल्यूज निकाल सकते हो तुम, है ना। इसका वैल्यू पता है √30 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसका वैल्यू भी पता है, तो v और a पता है अपने को। और डॉट कैसे निकालेंगे? a1 a2, अभी j i के साथ कोई टर्म है क्या? तो 30 इंटू 0 प्लस 20√2 इंटू -10, दैट विल गिव यू न्यूमरेटर। समझ में आएगा? इसको सॉल्व करो, इससे तुमको क्या कहते हैं, थीटा मिल जाएगा, इट विल बी cos इनवर्स ऑफ v डॉट a अपॉन va। तो इफ दे आस्क यू एंगल, ऐसे वर्क करना है अपने को, इज मेकिंग सेंस? तो ये समझना है, कैन यू गेट द वेक्टर्स? यस, इफ यू कैन गेट द वेक्टर्स, डू आई नो हाउ टू गेट एंगल विल टू वेक्टर्स? वो तो वेक्टर से पढ़ाया है, तो वो यूज कर लिया हमने। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैसे कर रहे हैं हम लोग? सी यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर एबल टू कंबाइन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। और ये सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये कोई भी दो वेक्टर में कर सकते हैं। समझा क्या? तुमको समझना है कि जो अगर इसने एंगल जो मांगा है ए और बी के बीच में मांगा, दोनों वेक्टर्स है, तो इफ आई कैन फाइंड द वेक्टर्स आई कैन इजीली गेट द एंगल, बिकॉज़ हमको पढ़ाया है। इज मेकिंग सेंस? इनफैक्ट ये जो यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऐसा 2 बार होने वाला है। देखो एक और डायग्राम बनाते हैं तुम्हारे लिए, यू शुड अंडरस्टैंड, लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस ट्रैजेक्टरी केयरफुली, तो एक बार देखो, ये h/2 जो तुमको बनाया है तुमने, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट है, यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस, g इज डाउनवर्ड्स और v इज लाइक दिस, और यहाँ पे ऐसे होगा, v ऐसा होगा और g ऐसा होगा। तो एक बार एक्यूट एंगल बन रहा है और एक बार ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, isn't it? दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, isn't it? और एक बार एक्यूट एंगल बनेगा। चमका मैं क्या बोल रहा हूँ? v और g के बीच में जो एंगल है, h/2 पे ही 2 बार h/2 इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है ना, तो एक बार ऑब्ट्यूज एक बार एक्यूट, isn't it? समझा? तो एक बार आंसर तुमको इससे सॉल्व करें, अगर एक्यूट मिला आंसर, समझ लो, आई थिंक यू गेट एक्यूट इससे आंसर, ठीक है। वंस यू गेट एक्यूट आंसर, ओके, उसको 180 माइनस थीटा कर दो, तो इनका ऑप्टिकल आंसर मिल जाएगा। समझे? v और एट h/2, v और a के बीच का जो एंगल है, वो एक बार ऑप्टिक्स होता है और एक बार एक्यूट होता है। इस फॉर्मूला से एक आंसर एक्यूट मिल जाएगा, 180 से माइनस करोगे तो तुमको ऑप्टिकल आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये सब पॉइंट समझना है अपने को। तो मोशन में जैसा सिर्फ एक फॉर्मूला इसका आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे सकते हो लोग, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट आया तो यू शुड बी एबल टू एनालाइज दिस। Is it making sense? There is no single answer to this question. There are 2 answers possible. One is acute, other is obtuse. Any questions here? समझ में आया? लिखो।
और लिखो और एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर दो मेरे लिए. क्वेश्चन इसकी फाइंड dv बाई dt का मॉड, ये एंड d वेक्टर v mod by dt when velocity makes 30 degrees with respect to x axis. जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है. जब वो 30 डिग्रीज बनाएगा, when it makes 30 degrees, at this moment I want to know two values. एक d वेक्टर v by dt का मॉड और दूसरा d by dt ऑफ वेक्टर v का मॉड. मतलब तुम समझो यहाँ पे क्या हो रहा है. देखो ये क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी, उसका मॉड लिया तो क्या मिलेगा, स्पीड. समझा कि नहीं. तो इसको रीड करेंगे. दिस इज एक्चुअली रेट मतलब डिनोमिनेटर में टाइम है. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. बिकॉज स्पीड का तुमने रेट निकाला है, पहले तुमने मॉड निकाला है फिर उसका रेट निकाल रहे हो. समझ में आ रहा है क्या. अंडरस्टैंड डिफरेंस. वेलोसिटी वेक्टर का मॉड लिया है पहले. ठीक है, मॉड मतलब यूर इन वैल्यू, तो वेलोसिटी का वैल्यू को स्पीड बोलेंगे. समझा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मांगा है यहाँ पे. और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉड को पहले भूल जाओ. ठीक है, ओके, वेलोसिटी का रेट है, राइट. तो दे वांट मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज मैग्नीट्यूड, मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मेकिंग सेंस. इन दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया क्या. देखो कहां मॉड लगा रहे हैं उसके से क्वेश्चन ही चेंज होता है. ठीक है, यहाँ पे स्पीड का चेंज मांग रहा है वो, और यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज का मॉड मैग्नीट्यूड मांग रहा है. चमका क्वेश्चन. थोड़ा सोचो 2 मिनट और. ठीक है, देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू. बट पहले वाला वो वाला कॉपी करो, फिर इस पे आ जाओ. See, what you have to understand this problem is, so when they say rate of change of velocity का magnitude, what is rate of change of velocity? Acceleration. समझा. तो acceleration होता है actually d vector v by dt, isn't it? उसका मॉड निकालने बोल रहे हैं, मतलब acceleration मॉड पूछ रहे हैं. अभी पूरे प्रोजेक्टाइल में you know that the only acceleration acting is g, which is downwards always. और वो g की वैल्यू क्या है, 10. आंसर 10, खत्म. चमका. समझा. g लिखो या 10 लिखो, तुमको जो लिखना लिखो. ओके, इज मेकिंग सेंस. तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था. ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हो, he wants rate of change of speed. So you know that if you remember that argument we gave, कि if a object is going on a curvilinear path, so it has दो accelerations, एक AR है और एक AT है ना. AT कौन सा acceleration है, it is that acceleration is parallel to your V. This is your V and AR is perpendicular to it. तो इसको A perpendicular और A parallel भी we can say, isn't it? Speed change करने वाला acceleration कौन सा है, AT. So they want actually, when I write like this, ये स्पीड, रेट ऑफ जो स्पीड बोल रहा है, तो एक्चुअली वो तेरे से A पैरेलल या AT मांग रहा है. Isn't it? This you have to understand first. See, what we are looking for is A पैरेलल and AT. ये समझ में आ गया अगर, तो निकालना बहुत आसान है. देखो कैसे करेंगे. Now you have to just draw diagram and everything is now diagrammatic. Okay. See, this is your projectile. बोला AT कब चाहिए उसको, when the velocity makes, let's make the velocity first. When the velocity makes, this is the velocity, ठीक है, and velocity makes certain angle 30 degrees, they said, है ना. उसने बोला कि velocity जो 30 degrees बनाएगा वो टाइम पे मुझे ET चाहिए. अच्छा, at this moment how is the acceleration pointing, वो तो डाउनवर्ड ही है भाई. ये तो 10 है ना ऐसा. Are you getting the point? G is 10, ठीक है, डाउनवर्ड्स ऑलवेज इस मोमेंट पे. समझ में आया क्या. अच्छा, नाउ वन सेकंड, आई जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस. यूज वाइट. ओके, हाँ. तो बट सी, G और V के बीच में
एंगल कितना है 150 नहीं 90 में 120 isn't it, है ना. आई एम लुकिंग फॉर जी का वो कंपोनेंट या ए का वो कंपोनेंट जो वी के अलोंग हो. समझ में आ रहा है क्या. तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं ये डायरेक्शन में आया था. सुनो, आई विल मेक टू डायरेक्शंस. दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स अलोंग वी. ठीक है, अलोंग मतलब वी को पैरेलल. ये डॉटेड लाइंस ग्रीन में जो बना है वो वी के पैरेलल वाला डायरेक्शन है, और उसको परपेंडिकुलर देखिए. इस लाइन पे जो भी है वो लोग कौन है, पैरेलल कंपोनेंट्स टू वी. ओके ठीक है, और जो इस लाइन पे है वो सब कौन है, टू वी. बिकॉज ए टी ए आर वी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग. ठीक है, तो मैंने वी का दो डायरेक्शन बना दिया. जो ग्रीन में बनाया है ये एक्चुअली वी के लिए, ये वी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है और ये के वी का पैरेलल डायरेक्शन है. समझा. अच्छा अब देखो, अब तो तुम्हारे लिए आसान है. ठीक, ये 30 तो ये कितना 60 और ये कितना, अरे ये 30 तो ये 60, ये कितना 30 ना. ये और ये परपेंडिकुलर, येलो और व्हाइट परपेंडिकुलर है. समझा क्या, बिकॉज जी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ना. ठीक है, तो येलो व्हाइट परपेंडिकुलर, तो ये ना पूरा 90 है. ये 30 तो ये 60 होएगा, तो ये 30 होएगा. समझ में आया क्या. इससे मुझे क्या आया देखो, इससे मुझे जी का कंपोनेंट आया, एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द एंगल दिस विल बी जी cos 30, है ना. एंड अवे टुवर्ड्स द एंगल, अवे फ्रॉम द एंगल दिस विल बी g sin 30. ओके, g cos 30 इज योर a परपेंडिकुलर, और इसको AR बोल सकते हो तुम, दैट विल बी g cos 30. ओके, एंड g sin 30 represents your what, 80. समझा. अभी 80 जो है वो v के ऑपोजिट, इसका मतलब क्या करेगा, वो v की वैल्यू को कम करेगा. जो होता भी है, जैसे से ऊपर जा रहा है वैसे v की वैल्यू कम हो रहा है. समझा ना. अगर वो पैरेलल होता, ठीक है, तो v का वैल्यू बढ़ाता हो. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले केस में जब नेक्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी होता है, तो वो केस में ये g है और ये v है, तो ये गेट वन कंपोनेंट हियर, वन कंपोनेंट हियर. तो दिस इज g व्हाटएवर थीटा जो भी मिलेगा, g cos, अगर दिस इज थीटा, दिस इज g cos थीटा, दिस इज g sin थीटा. ये वाले केस में जब नेक्स्ट हाफ जर्नी होता है तो g cos एंड v आर पैरेलल, तो यहाँ पे वो स्पीड को बढ़ाएगा. ठीक है, बट बिफोर मैक्सिमम पॉइंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द स्पीड. समझा. तो यहाँ पे स्पीड, जो रेट ऑफ जो स्पीड है वो नेगेटिव है, तो स्पीड कम होएगा. समझा कि नहीं समझा. ठीक है, तो व्हाट इज आंसर, बेसिकली आई वाज लुकिंग फॉर दिस आंसर. इट विल बी g which is 10 cos sin 30 is to 5 meter per second. You can put a negative sign if you want to, saying that it is opposite if you want to. Is making sense. चमका, समझ में आया क्या, तो उड़ गए तुम्हारे. Is making sense or not. इसको करने के और भी तरीके हैं. ओके, मैंने सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन तुमको दिया है जो डायग्रामेटिक है. और तरीका ये है कि यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी, ये v निकाल सकते हो तुम इन टर्म्स ऑफ टाइम. देखो यहाँ पे तुमने निकाला भी है. आई शो यू. In this problem, look at this. You have got v at any instant. What is this v? Velocity at any moment, right? ठीक है, ये v है, velocity vector है. इसका वैल्यू निकाला तो स्पीड मिल जाएगा. That will be root of 30 square plus 40 minus 10t the whole square. फिर उसको वो v मिला, वो स्पीड है. स्पीड को डेरिवेट करो तो तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मिल जाएगा. तो वो घटिया आंसर आएगा, मतलब बिकॉज थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा. फिर टाइम निकालो, फिर सब्स्टिट्यूट करो, फिर आंसर आएगा सब कुछ. टू मच ऑफ वर्क. पॉइंट. तो सेकंड मेथड ज्यादा टीडीएस है. ठीक है, फर्स्ट मेथड बहुत इजी था इसलिए वो कराया. फर्स्ट मेथड मोर डायग्रामेटिक एंड मोर कंसेप्चुअल. समझ में आया क्या. ये ऐसे भी कर सकते. स्पीड, ये वेलोसिटी पता है एट एनी मोमेंट, तो मैं वेलोसिटी से स्पीड निकाल सकता हूँ. स्पीड को डेरिवेट किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मिल जाएगा. ठीक है, बट उसको डेरिवेट करके आंसर टाइम में आएगा. टाइम भी ढूंढना पड़ेगा, फिर टाइम को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाके वही आंसर 5 वाला आएगा. बट उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है और आंसर भी बहुत घटिया दिखता है. इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट एट होम. वी कैन डिस्कस दैट सॉल्यूशन ऑफलाइन. समझ में आए. ठीक है, हियर इज अ होमवर्क क्वेश्चन. इट्स अ गुड प्रॉब्लम. ये लिख लेना तुम लोग, पहले होमवर्क सुन लो. बोला है कि दिस अ पॉइंट ओ है जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोल रहे हैं. तो यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया विथ वेलोसिटी u एंगल थीटा पे. ओके, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड थीटा सच दैट कि 14 मीटर दूर पे एक टावर है PQ. समझा क्या. और पॉइंट A विच इज 4 मीटर अवे. तो ऐसा ये यू हैव टू चूज u एंड थीटा सच दैट कि इट इज जस्ट ग्लेज करके जाके A पे गिर जाए.
समझा क्या? जस्ट टच करके, ये टावर को टच करते हुए, ठीक है, जाके ए पे ही गिरना चाहिए। ऐसा जो टावर को टच किया और चल गया कहीं और, इट हैज टू ग्लेज थ्रू द टावर एंड रीच एट योर पॉइंट ए। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एंड थीटा सच दैट it just glazes through the tower and reaches at point A. It's a good problem और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन है इसका, तुम लोग कोशिश करो इसको, ठीक है? समझ में आएगा? और भी अच्छे प्रॉब्लम्स है ओलंपियाड के, मैं धीरे धीरे कराऊंगा। ओके, width of the tower is negligible, you can imagine it's like a rod. Okay, तो ignore the width. हाँ, so you can say that the total is 18. जो projectile has to start from O and reach at A, ठीक है, and the total this has to be 18. है ना? तो we can claim that the range is 18. That you have to choose u and theta in such a way that the range is 18 and it just glazes या just touches the point Q of the tower. ठीक है? समझ में आया क्या क्वेश्चन? ठीक है, ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे and we'll go to the next part of projectile. There are more questions that we'll take up later.